students, I am back with my session number 3, chapter number 7, parts of a plant. Kids, we already completed 2 sessions of this chapter, right? Today is session number 3. In session number 3, I am going to explain about shoot system and all about leaf. But before I start explaining about today's session, let me revise you all the things about last 2 sessions. What we have done in last 2 sessions? We have done vocabulary words, meanings, parts of a plant, root system and functions of roots. Right? In vocabulary words, let's begin. Number 1, shoot. Number 2, root. Number 3, taproot. Number 4, fibrous root. Number 5, leaf blade. Number 6, veins. Number 7, stalk. Number 8, seeds. Number 9, mustard. Number 10, nutrients. Number 11, firm leaf. Number 12, pumpkin. Number 13, stomata. Number 14, chlorophyll. And number 15, climbers. Now, meanings. Number 1, fibrous. Made of many fibers or branches. Number 2, nutrient. A substance that is needed to keep a living thing alive and to help it to grow. Number 3, leaf blade, flat part of a leaf. Number 4, stalk, a thin stem that supports a leaf, flower or fruit and joins it to another parts of a plant or tree. Number 5, stomata, small holes on leaves through which air enters and helps plant to breathe. Number 6, germination, the process by which a seed starts to grow. Here we completed all the things about session 1. Now session 2 में क्या पढ़ा था? Parts of a plant. कितने parts होते हैं plants के? The root system and the shoot system are the 2 main parts of a plant. Whatever above the ground, that is shoot system, and whatever under the ground, that is root system. Shoot system is visualized to us. Root system, we cannot see that. Clear? Now, shoot system. The part of a plant generally above the ground forms the shoot system. It includes the stem, leaves, flowers and fruits. Now, root system. The part of a plant generally found below the ground forms the root system. It includes roots. कोई भी पार्ट होता है प्लांट का जो अंडर द ग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रूट. We cannot see that these seeds because क्योंकि वो अंडर द ग्राउंड है. उसको देखने के लिए हमें पूरा का पूरा अंदर से उसको निकालना पड़ेगा, right? Now, root system. There are 2 types of root, taproot and fibrous root. टैपरूट जो होते हैं वो बिल्कुल स्टेम में से ही कनेक्ट रहते हैं, उसके रूट्स होते हैं. जैसे कि फाइब्रस रूट क्या होता है कि स्टेम के बेस से कनेक्टेड रहते हैं और रूट्स के अंदर रूट्स के अंदर रूट्स के अंदर रूट्स होते हैं, राइट? फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ रूट. फंक्शंस ऑफ रूट में क्या है? दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, कि वो प्लांट को एकदम फर्मली कनेक्टेड रखता है. Sorry. Number 2, they absorb water and nutrients. Water and nutrients are required by the plants to grow. उसको सारे के सारे nutrients और plants को nutrients और water चाहिए होते हैं, right? So वो किस में से absorb करता है? Roots के through absorb करता है. Clear? Now let's begin our today's session. Let's begin shoot system, right? The shoot system consists of stem, leaves and flowers. Shoot system में क्या visualize होता है? Stem, leaves and flowers. First of all, stem. The stem is the main part of the shoot. Stems can be soft, weak or hard and woody. Kids, stems जो होते हैं, stems जिसे हम flowers को पकड़ते हैं, right? कोई भी प्लांट ले लो उसमें स्टेम तो होती है. तो there are so many different types of stems are there.
like soft stem, weak stem, hard stem, and woody stem. These are the different types of stems are there. Now, soft stems are found in herbs such as mint and coriander. Soft stem किसके अंदर होते हैं? Mint and coriander. Mint એટલે ખબર છે kids? પુદીનો. આપણે પાણીપુરી ખાઈ છે એમાં ક્યું પાણી યુઝ કરી? આપણે પી છીએ, આપણે પુદીનાનું પાણી પી છીએ. तो आपने कभी उसको नोटिस किए? पुदीने को आपने हाथ में लिए? तो नहीं लिए तो आप देख लेना उसके स्टेम्स जो होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. इवन हम उसके स्टेम्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही यूजफुल होते हैं. फिर कोरिएंडर, कोथिमीर, जो हम मम्मी वेजिटेबल्स में डालती है, कोई भी चटनी बनाने में डालती है, ऊपर कोई भी गार्निशिंग में भी यूज करते हैं कोरिएंडर. तो उसके स्टेम्स जो होते हैं हम उसको खाते भी बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होते हैं, राइट. These plants usually have green stems. उसके स्टेम्स भी कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, राइट. Now, weak stems. Weak stems are found in creepers such as pumpkin and watermelon and climbers such as the grapevine. Stems of these plants cannot hold the plant upright. Weak stems होते हैं किसके? फॉर एग्जाम्पल पंपकिन और वाटरमेलन, वो तो कितने हैवी होते ही नहीं है, बहुत हैवी होते हैं. वो इतने हैवी होते हैं बट उसके स्टेम्स उतने ही वीक होते हैं, उसको बेयर कर पाते नहीं. किड्स आपने कभी क्लाइंबर्स में ग्रेपवाइन ग्रेपवाइन? हियर आई एम शेयरिंग एन इमेज ऑफ ग्रेपवाइन प्लांट. तो उसका क्या होता है कि वो उसको अपराइट अपर वे में नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स, राइट, कोई भी प्लांट में कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो होता है तो वो ऊपर होता है. मैंगो ट्री देख रहे किड्स आपने? मैंगो ऊपर लटकते हुए होते हैं, राइट. बट ये वाटरमेलन और पंपकिन के स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि उसको ऊपर रख पाते नहीं है. क्लियर? नाउ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स. Hard and woody stems are found in big trees such as mango, cherry, and banyan trees. Such stems are called trunks. Hard and woody. एकदम hard मतलब बहुत ही strong और woody मतलब बहुत ही woody होता है. तो आपने कभी मैंगो ट्री देखा है? चेरी ट्री, बनियन ट्री, तो ये सारे के सारे ट्रीज के कैसे होते हैं स्टेम्स? हार्ड और वुडी दे होते हैं, राइट. सच स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक. जिसके भी हार्ड और एकदम वुडी स्टेम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंक. गुजराती में आता है आपको? थर्ड કહેવાય એને શું કહેવાય? थर्ड. उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रंक. तो एक्चुअल में वो है तो स्टेम ही बट बहुत ही हार्ड है और बहुत ही वुडी है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ट्रंक. क्लियर? हम रहते तो ह्यूमन बींग्स ही है. जब छोटे होते हैं तो चाइल्ड होते हैं, बड़े होते हैं तो एडल्ट्स में आ जाते हैं, राइट. फिर चेंज होते जाते ओल्ड में आ जाते हैं बट है तो भी ह्यूमन बींग्स. बिल्कुल वैसे ही वो है तो स्टेम बट वो बड़ा है, हार्ड है, एकदम वुडी कवर्ड है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्रंक. क्लियर? नाउ फंक्शंस ऑफ अ स्टेम्स. द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स. स्टेम्स के कितने फंक्शंस होते हैं? दे कीप मोस्ट प्लांट्स अपराइट. मतलब कोई भी प्लांट्स को अपराइट रखने में वो बहुत ही हमारी हेल्प करता है. फिर है पॉइंट नंबर 2. दे बेयर लीव्स एंड फ्लावर्स. स्टेम से क्या कनेक्टेड होता है? स्टेम से सारे के सारे लीव्स अटैच होते हैं, फ्लावर्स भी अटैच होते हैं, राइट. तो वो उसको अटैच करके रखता है. पॉइंट नंबर 3. They carry water and nutrients from roots to leaves. कि वो स्टेम है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो लीव्स और फ्लावर्स को सप्लाई करता है. क्लियर किड्स? जैसे कि हम मुंह से कुछ भी खाते हैं तो सप्लाई तो स्टमक में जाता है. स्टमक है वो सारे के सारे पार्ट्स में बहुत सप्लाई करता है, राइट. तो ये एक प्रोसेस है. तो इसकी क्या प्रोसेस है कि जो सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो स्टेम को देते हैं. स्टेम किसको सप्लाई करते हैं? फ्लावर्स एंड लीव्स.
They carry food from the leaves to all the parts of the plant. वो फिर leaves से भी food को carry करके दूसरे सारे के सारे parts होते हैं plants के, उसको supply करता है. Clear kids? तो ये एक vice versa है, जैसे कि stem का जो है वो stem जो है वो leaves से food को भी सबको पहुंचाता है, और कोई भी water और nutrient होते हैं वो सारे के सारे plants को पहुंचाता है. Clear kids? Now again I am reading functions of the stem. Listen carefully, huh? Point number 1. They keep most plants upright. Number 2. They bear leaves and flowers. Point number 3. They carry water and nutrients from roots to leaves. Point number 4. They carry food from the leaves to all the parts of the plant. Clear? Now I am going to tell you, I am going to give you information about leaf. Kids, here I am sharing an image of leaf. Leaf grows on stems and have different shapes and sizes. Kids, have you ever noticed there are different kinds of leaves are there, right? There are different types of colors. Some have a light green color, some have a different dark green color. Some are small, some are big. We have so many different types of leaves are there, right? Now, most leaves appear green due to the presence of a substance called chlorophyll. Mostly 90% leaves ऐसे होते हैं जो green color के होते हैं. कौन से color के होते हैं? Green color के. Because they have a chlorophyll inside. Because chlorophyll क्या करता है? सारे के सारे plants को green color provide करता है. If chlorophyll है plants में तभी वो green color आएगा. तो most of के plants तो green color के ही होते हैं. It means chlorophyll is filled inside the plant. This substance helps them make food for the plant. Chlorophyll का main work होता है कि plants के लिए food बनाता है. क्या करता है chlorophyll? Plants के लिए food बनाता है. अगर plants के लिए food नहीं बना पाते हैं कोई भी चीज मतलब वो उसमें क्लोरोफिल नहीं है. क्लियर किड्स? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल द थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. सबसे पहले लीफ ब्लेड, मतलब ये जो मैंने बोला ना वोकेब्युलरी वर्ड्स कि लीफ का जो पतला पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. फिर उसके नीचे है वेन्स. जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है बिल्कुल वैसे ही लीव्स में भी वेन्स होती है. इफ यू हैव अ लीफ देन कीप इट इन योर हैंड, कीप इट ऑन योर हैंड एंड आप उससे रिलेट करो कि दीदी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं. वेन्स दिख रही है ना, वो यहाँ इमेज में भी क्लियर है वेन्स, राइट? फिर उसके नीचे है स्टॉक. लीफ के नीचे का जो स्टेम से कनेक्टेड रहता है ना, छोटा सा स्टेम जैसा ही होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक. बट स्टॉक का क्या वर्क होता है? लीफ को कोई भी स्टेम से कनेक्टेड रखता है. क्लियर किड्स? नाउ द फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ प्लेट. जो फ्लैट सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ प्लेट. Many small tubes called veins cover the entire leaf plate. ये पूरा का पूरा जो लीफ प्लेट होता है उसको कौन कवर करके रखता है? वेन्स. पूरे के पूरे लीफ में वेन्स डेफिनेटली होती है. इफ यू हैव इट जस्ट गिव लुक ऑन दैट. देख रहे हो? तो पूरा का पूरा जो लीफ प्लेट होता है वो किससे कवर रहता है? वेन्स से. A stalk connects the leaf to the stem. स्टॉक का क्या काम है? वो लीफ को और स्टेम के बीच को कनेक्टेड रहता है. जैसे कि आपको पता है ये हमारा हैंड होता है ना, यहाँ हैंड है और ये हमारा आर्म है, तो इसके साथ ही कनेक्टेड रखता है. एक बोन आता है, जॉइंट्स आते हैं, राइट? तो जॉइंट्स उससे कनेक्टेड रखते हैं. बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है कि स्टॉक होता है वो लीफ को और स्टेम को कनेक्ट करता है. क्लियर किड्स? नाउ फंक्शंस ऑफ अ लीफ. फंक्शंस लीव्स के कितने होते हैं? तो दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. लीव्स का क्या काम होता है? तो के पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना. तो वो किसकी प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं? एयर, वाटर
and sunlight. अगर ये तीनों के तीनों favorable conditions में है, then and then leaves are able to make food for the plants. अगर air नहीं है, water भी है, sunlight भी है, but air नहीं है, तो it won't be able to prepare food. फिर sunlight है, air है, water नहीं है, तो भी food नहीं बनेगा. क्लियर? ये तीनों के तीनों चीजें साथ में फेवरेबल कंडीशन में रहेगी तो इजीली फूड प्रिपेयर करने में इजी होगा. दिस इज व्हाई द लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. हम उसी वजह से लीफ को क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इफ सपोज आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ब्लैंक इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलेंगे. आवर आंसर मस्ट बी लीफ. हमारा आंसर क्या आएगा? लीफ. लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. क्लियर? क्योंकि वो पूरे के पूरे प्लांट के लिए फूड बनाता है. इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द होल प्लांट. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लीफ एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 2. Tiny openings on the leaves known as stomata help the plant take in and give out air. कोई भी लीफ होती है ना किड्स, उसके पीछे छोटे छोटे होल्स होते हैं. We are calling it as a stomata. उसको क्या बोलेंगे? Stomata. ये stomata we cannot see stomata by our naked eye. हम अपनी naked eye से stomata को देख सकते नहीं है. बट उसका क्या वर्क होता है? जैसे हम नोज से ब्रीद इन ब्रीद आउट कॉन्टिन्यूअसली ये प्रोसेस करते हैं ना ब्रीदिंग, अदरवाइज वी कैन नॉट बी अलाइव. हम जिंदा रह सकते नहीं है. बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स आल्सो नीड एयर टू ब्रीथ, राइट? तो वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट का वर्क कौन करता है? स्टोमेटा, जो लीफ के पीछे होता है. किसके पीछे होता है? लीफ के पीछे होता है. क्लियर? I hope so you understand. So this is called stomata. Now once again I am reading functions of leaves. Point number 1. They prepare food for the plant in the presence of किसकी presence में? Air, water and sunlight. This is why the leaf is known as the food factory of the plant. Number 2. Tiny openings on the leaves known as stomata help the plant take in and give out air. वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है with the help of small holes. What we are going to call that small holes? Stomata, right? This is the functions of leaf. Here we completed our section number 3. What we have learned in today's session? We have learned all the things about shoot system and leaf. Clear kids? I have shared a PDF with you, right? मैंने आपके साथ PDF शेयर की ना, उसमें there are different fill in the blanks are there, right? Try to fill it by your own self. बहुत ही easy है, try करनी है आपको fill करने की. अगर आपने सेशन अच्छी तरह से देखा है तो आप easily उसको कर सकते हो. Now kids, in next session I am going to explain about flower, functions of a flowers, fruit, seed and how plants are useful to us. ये हमारे लिए plants किस तरह से useful होते हैं. Kids, I hope so you understand. Now kids, till next session kids. Bye.